This is lecture video for the course Environmental Studies ESC 161. In this lecture will be including the discussion of natural resources, types of natural resources, and detailed discussion of various natural resources. So, what are natural resources? Any material which is required or used to sustain life or livelihood is termed as resource. Okay. In other words, resources means anything natural or human or cultural which satisfies human wants. Okay. And what are natural resources? Natural resources can be defined as a form of energy or any matter which is useful or essential for the functioning of organism, population, or ecosystem. In other words, natural resources include all the natural forces of or factors which are such as air, water, soil, landforms, minerals, and and natural resources generally occur naturally within the environment. They exist relatively undistributed by the mankind in a natural form. These natural resources are characterized by the amount of biodiversity or geodiversity exist in the various ecosystem. These natural resources are derived from the environment, and some of them are essential for survival and most of them are used for satisfying the wants of humans, like air, water, and food. These are the resources which we are or these are the things which we are availing from the environment, and these are very important for our survival. We cannot live without water, we cannot live without air, or neither we can live without food. Okay. But there are some resources that are used for the satisfying the human wants, like if we need we have food that is exist ripe like fruits or your vegetables. These you can directly use them. You can eat them and you will survive. But there are some, if what human wants, they want to taste it in different ways, so they want to cook it, and for which they need fire. Okay. They need energy to cook it, so that energy that is used for satisfying the human want, that this is also a resource that we are availing from natural resources. Okay. तो हमारे पास जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास दो तरीके से यूज़ होते हैं। एक तो सर्वाइवल के लिए जो हमें हमेशा ज़रूरी ही है हमारी लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड अदर थिंग इज़ जो कि हमारी डे टू डे डेली लाइफ में हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे कि अगर आप पेट्रोलियम की बात कर लो, जो कि पेट्रोल की बात कर लो, जो कि आपको नेचर से ही मिलता है, ठीक है। और वो आपका वैसे आपके सर्वाइवल में मदद नहीं करता, बट आपको अपनी डेली डे टू डे लाइफ में अपने इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको व्हीकल में यूज़ करना है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करनी है, तो ये आपकी सर्वाइवल से रिलेटेड नहीं है, बट अदर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके सर्वाइव जो पॉपुलेशन है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी कुछ होते हैं और कुछ उनके वांट सेटिस्फाई के लिए होते हैं, ठीक है। So, natural resources are a or natural resource is a form of energy or matter which is essential for functioning of organism, population, and ecosystem. And these all natural forces or factors such as air, water, soil, landform, mineral, forest, etc. These are the natural resources that are used for serving the human wants. Okay. Whatever are the natural resources, these are classified in different ways. So there are three broad methods, or we can say three broad lines in which we can classify the natural resources. First is ubiquitous or localized. Okay. So on the first classification basis, we can say there are ubiquitous
resources or localized resources. Ubiquitous resources are the resources that will exist or being available everywhere, such as these can be found everywhere, such as light, air. There is no fixed place for the existing them. Okay, like अगर आपको कोल की बात करूँ तो आपका फिक्स प्लेसेस पे अवेलेबल है। कोल के कुछ खाने हैं जो कि कुछ ही प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको कोल की खाने मिलेगी, हर जगह आपको नहीं मिलेगा कोल, है ना। और अगर आप सन एयर सनलाइट की बात करो तो वो अर्थ पे आप किसी भी कोने पे जाओ हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। एयर की बात करो, एयर हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे जो भी रिसोर्सेज होते हैं इन सबको बोलते हैं यूबिक्विटस, ठीक है, एग्जिस्टिंग और बीइंग एवरीवेयर। अदर आर लोकलाइज्ड, लाइक अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम की, तो वो समुद्र के किनारे जैसे प्लांट्स वगैरह पे ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। या आप ऐसे अदर रिसोर्सेज की बात करो, आप पेट्रोलियम की बात करो, पेट्रोलियम आपका दुबई में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे एरिया वाइज ये जो भी रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। They exist on small sporadic areas. These resources will be referred as localized resources. ठीक है। Other base of classification is inexecutable और executable. इनएग्जीक्यूटेबल वो होते हैं जो कि आपके फ्यूचर में कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पानी है और भी अदर रिसोर्सेज हैं, ये आपके रन आउट नहीं होते हैं कभी भी। जैसे सोलर रेडिएशन है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी है, एयर आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्लीन एयर का अगर आप बात करो तो क्लीन एयर का एक्सेस कम हो सकता है अगर हमने अपने पॉल्यूशन पे, एयर पॉल्यूशन पे फोकस नहीं किया तो, है ना। लेकिन एयर की बात अगर करूँ तो एयर ख़त्म कभी भी नहीं होगी आपके। इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, इनको बोलते हैं इनएग्जीक्यूटेबल। एंड एग्जीक्यूटेबल आपके वो होते हैं जो कि अब कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। अब जैसे कि कोल की बात करो, आप कोल की खाने अवेलेबल होती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में कोल अवेलेबल होता है, ठीक है। आप खोद के उसको निकालते हो, जब आप वहाँ से निकालोगे वो कोल का वो खान ख़त्म हो जाएगी एक टाइम पे आके, ठीक है। दे कैन बी डिप्लीट इफ मैनेज्ड इम्प्रॉपरली। अगर आपको उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे वो वाले सोर्सेज। पेट्रोलियम की बात करो, पेट्रोलियम आपका किस सोर्सेज में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि दुबई है, या आपके पेट्रोलियम के जो भी होते हैं, आपके कुएँ वो ले जाते हैं, वेल होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको यूज़ करते हो ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, उधर से निकालते जाओ। ग्राउंड वाटर की बात करो आप, ग्राउंड वाटर अगर आप उस एरिया से निकालते जाओ, एक लेवल पे आके वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करोगे और प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करोगे तो, उस ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन नहीं रखोगे तो वो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी ग्राउंड वाटर है या पेट्रोलियम है या इस टाइप के जो भी सोर्सेज हैं, इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल। इनकी फाइनाइट मतलब इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, ठीक है। और ये एक ज़्यादा कंटिन्यू यूज़ करते रहने तक, आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो, उनको मैनेज नहीं कर रहे हो, तो वो ख़त्म हो जाएंगे एक लेवल पे आके, ठीक है। अदर क्लासिफिकेशन है आपका नेचुरल रिसोर्सेज का ऑन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज ये आपका है एग्जिस्टेंस के बेसिस पे या उनके रिन्यूएबल के बेसिस पे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। तो these renewable resources are the resources that can be replenished through rapid natural cycle और are known as renewable resources। ये आपके वो resources होते हैं जो कि आपकी अपनी एम्बिगुएंस को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू द रिप्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स में आपकी जितनी भी क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट है, ये आपके रिन्यूअल हो गए, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ रिन्यूअल रिसोर्सेज आर, उनका कोई लाइफ साइकिल नहीं होता पर वो फिर भी रिसाइकल हो जाते हैं। जैसे कि आपका वुड हुआ, वुड प्रोडक्ट हुए, पल्प प्रोडक्ट हुए, नेचुरल रबर है, ठीक है। ये आपकी रिन्यूएबल है, आपका फाइबर है, ठीक है। कॉटन, जूट, एनिमल वूल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब आपके जो भी हैं सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी है,
उसका solar energy also having a finite life as a special case is considered as a renewable resource as much as solar stock is inexhaustible in a on the human scale. And other one is non-renewable resources. Non-renewable resources are the resources that cannot be replenished through the natural process are known as non-renewable resources. ये आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं और ये अपने आप को दोबारा से डेवलप नहीं कर सकते या दोबारा से अपने आप को एम्बियंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको फर्दर इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि आपका मेटल है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर है, ये आपकी जिन माइन से निकलते हैं उन माइन में अगर ये ख़त्म हो गए तो ये उस पर्टिकुलर जगह पे आप उसका वो सोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक मतलब इनको कंटिन्यू निकालते निकालते ये एक लेवल पे आके ख़त्म होंगे, ये अपने आप में अपने आप को दोबारा नहीं बनाते हैं, ठीक है। These resources are also include fossils, fuels, petrol and coal, other minerals, है ना, and other salt, other things. Such type of things are known as non-renewable resources. एक बार अगर ये सब कंज्यूम हो गए तो फिर ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे अगर इनको प्रॉपरली मेंटेन करते हुए नहीं चलोगे तो, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, ठीक है, थ्रू द रैपिड नेचुरल साइकिल दैट इज वाटर, एयर, सॉइल, सोलर एनर्जी एंड फॉरेस्ट. Other than this, we can also include wood products. Okay, these are the examples of non renewable resources. So they do not have life cycle, but they can be recycled. Another one is non-renewable resources. As you can see the images, there are petroleum, coal, other materials, minerals, other metals. Okay, non-renewable resources are the resources that cannot be replenished through the natural process are called non-renewable resources, and once these non-renewable resources are totally consumed, they will be gone forever. क्योंकि एक देखो इन लोग ये जो मटेरियल तैयार होते हैं ना, ये बहुत लंबी प्रोसेस के बाद थोड़े बहुत करके तैयार होते हैं, ठीक है। और अगर क्योंकि इनका जो बनने का जो प्रोसेस है, नेचुरली जो बनने का प्रोसेस है बहुत लंबा, बहुत स्लो है, ठीक है। लेकिन इनका कंजम्पशन ज़्यादा है और इसलिए ये एक बार कंज्यूम हो गए तो ये इसलिए बोला जाता है ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से रेप्लेनिश्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपकी लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं और इनको इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल होंगे, एक बार एग्जॉस्ट हो गए उसके बाद दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर मतलब आपके पास दोबारा अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए इनके लिए प्रॉपर आपको इनको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। आपके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं। कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकलेबल हैं, ठीक है, उनको हम यूज़ करके फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं किसी एक चीज़ में यूज़ करने के बाद। तो दीज आर द रिसोर्सेज दैट कैन बी कलेक्टेड आफ्टर दे आर यूज्ड एंड कैन बी रिसाइकल्ड आर कॉल्ड एज रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कॉपर हुआ आपका, एल्युमिनियम हुआ, फॉस्फेट है आपका, पोटेशियम मिनरल्स हैं, ये सारे आपके ऐसे हैं कि आप एक बार पहले यूज़ कर लो, ठीक है। यूज़ करने के बाद इनको दोबारा रिकलेक्ट करके रिसाइकिल करके इनको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, फर्दर प्रोसेस में ला सकते हो। इसके बाद है आपके इसके बाद आते हैं आपके नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिसोर्सेज आपके दो हैं, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल वो जो कि आपके द्वारा एक बार यूज़ करने के बाद उनको दोबारा से कलेक्ट करके फिर से रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉन रिसाइकलेबल आपके वो होते हैं जो कि आप
उनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हो, उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल है, कोल से एक बार पूरा जल के आपको एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है? आपका पेट्रोलियम है, एक बार कंज़्यूम हो गया, तो उसको आप दोबारा से यूज़ करने के बाद वापस दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, वो कंज़्यूम होके सीधा ख़त्म होता है। यूरेनियम है, वो भी आपका इस तरीके से नॉन रिसाइक्लेबल है, ठीक है? तो ये थी आपकी बात क्लासिफिकेशन की, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस तरीके से क्लासिफाई हो। तो वो क्लासिफिकेशन है आपका यूबिकिटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिकिटस वो जो कि एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है? और लोकलाइज्ड वो जो कि आपके किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज आपके एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर कोल की बात कर लो तो कोल की कुछ आपके पर्टिकुलर जो माइंस हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में तक ही लिमिटेड है। आपका पेट्रोलियम है वो आपका किसी जो जो समुद्र किनारे या ऐसे ही एरियाज में लिमिटेड है, ठीक है? जैसे कि आप दुबई की बात करो तो बहुत सारे आपके वेल अवेलेबल ऑयल वेल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट एरियाज में, लेकिन अगर अदर कंट्रीज़ की बात की जाए तो बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसलिए उस टाइप के जो भी होते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड, ठीक है? टी है आपका जो कि आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा अवेलेबल होता है ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस, ठीक है? तो वो इसलिए उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। और यूबिक्विटस वो जो कि आपके हर जगह अवेलेबल है, जैसे कि आपका सनशाइन और आपका जो भी एयर है वो। दूसरा आपका होता है इनएग्जीक्यूटेबल और एग्जीक्यूटेबल, ठीक है? इनएग्जीक्यूटेबल वो जो कि आपके एक कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, एग्जीक्यूटेबल वो जो कि आपके एक टाइम के बाद आपके ख़त्म होने लगते हैं, उनकी फाइनाइट क्वांटिटी होती है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है? अगर उनको मैनेज नहीं किया प्रॉपरली तो ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे। दूसरे होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो कि आपके नेचुरल साइकिल के ड्यूरिंग दोबारा से तैयार हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका प्लांट हुआ, आपका जो भी प्लांट से रिलेटेड आपके फूड वगैरह अवेलेबल है वो। लेकिन आपके कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो कि नेचुरल साइकिल के ड्यूरिंग रेप्लेनिश्ड नहीं होते हैं दोबारा से। उनको एक बार कंज्यूम करा तो कंज्यूम्ड हो जाते हैं एंड गॉन फॉर गॉन हो जाते हैं, ठीक है? नॉन ये आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उनको आप दोबारा से वो दोबारा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिन्यू नहीं होते, दोबारा नहीं बनते हैं, ठीक है? जैसे कि आयरन हुआ, गोल्ड, कॉपर वगैरह हुआ। और आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आपके दो तरीके के होते हैं, जिसमें कि आपके होते हैं रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल वो जो कि आप एक बार यूज़ कर लो, फिर उनको वापस कलेक्ट करके रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर लो, ठीक है? जैसे कि आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। लेकिन कुछ आपके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं, जो जैसे कि आपका कोल है, पेट्रोलियम है। ये एक बार आपके यूज़ हुए, कंज्यूम हुए तो वो दोबारा से कलेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है? अगर कोल एक बार आपने जला के उसकी एनर्जी यूज़ कर ली, उसको दोबारा से आप वो सीधे बाद में राख ही बनता है, आप दोबारा से कोल उससे अवेल नहीं कर सकते हो। पेट्रोलियम है, एक बार आप तो आपने उसको यूज़ करके अपना व्हीकल यूज़ कर लिया और उसको दोबारा आप उसकी मतलब वापस नहीं ले सकते, वो तो एक बार यूज़ होके सीधा ख़त्म ही होता है, ठीक है? तो ये होते हैं आपके नॉन रिसाइक्लेबल। तो ये था आपका अभी तक का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं डिटेल में हर एक नेचुरल रिसोर्स की। रिसोर्सेज हैं आपके पास एग्जैक्टली अवेलेबल कौन कौन से हैं? तो अगर बात करें पहले नंबर पे तो आपके पास है फॉरेस्ट रिसोर्स। जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट में जितने भी आपके ट्रीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ हैं और आपकी उन पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड डिफरेंट फॉरेस्ट है में डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं और उसमें ही उनके डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है? फूड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो जितने भी आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। जितने भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है? वाटर रिसोर्सेज में आपके जितने भी आपके ग्राउंड वाटर है, ठीक है? आपका सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है और जो वाटर के थ्रू आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिलती है,
ठीक है, हाइड्रो एनर्जी मिलती है आपको, जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस के थ्रू, ठीक है, वो आपके सारे वाटर रिसोर्सेज में आते हैं। इसके बाद आता है आपके मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज क्या है आपके, जो कि नेचुरली दीज आर द नेचुरली occurring elements or compound formed by inorganic process is called mineral. It has a definite chemical composition or range of composition properties and atomic structure, ठीक है। these are the extraction of mineral from the earth is called as mining, ठीक है। जितने भी आपके मिनरल्स हैं, जो निकालने का प्रोसेस होता है अर्थ से, उसको बोलते हैं माइनिंग, ठीक है। लाइक एग्रीकल्चरल माइनिंग इज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ अ मैन इज यूजिंग मिनरल फ्रॉम बीइंग बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। देयर आर मोर देन 3000 मिनरल टाइप्स, ओके। आपके पास कितने टाइप के मिनरल्स टाइप्स हैं, 3000 टाइप के आपके मिनरल टाइप्स अवेलेबल हैं, एग्जिस्टिंग हैं। जो भी आपके मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, और ये आपके एग्जॉस्टेबल होते हैं, मतलब एक बार यूज़ हो गए तो वो आप ख़त्म होंगे। मिनरल्स में आपके जो गोल्ड है और जो अदर आपके मिनरल होते हैं, वो भी आपके मिनरल्स में काउंट होते हैं। इसके बाद आता है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज आर फाउंड ऑन आवर प्लेनेट in a variety of forms, like firewood or fossil fuels are being supplier of energy. Each time immemorial are known as conventional energy sources. Wind, hydropower, soil energy, and atomic energy are new or non-conventional sources. See, the energy resources are classified in two types: conventional and non-conventional, ठीक है। कन्वेंशनल वो जो कि आपके एक तरीके से जिसे कहा जाए रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल टाइप होते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल वो जो कि आपके फायर मतलब प्लांट के थ्रू और फोसिल फ्यूल के थ्रू अवेलेबल होते हैं आपको, ठीक है। और अदर आपके होते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो कि जिसमें जो इंक्लूड करता है आपका सोलर एनर्जी को, ठीक है। Fossil fuel are being limited in supply may be termed as exhaustible sources, while other are like solar, hydro, wind, atomic energy powers. They would be available to man for infinite period are and are regarded as inexhaustible sources, ठीक है। तो जो भी आपके इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, आपको हर समय अवेलेबल होंगे एनर्जी सोर्सेज, जो कि आपके हवा से और आपके पानी से अवेलेबल होते हैं, जो भी एनर्जी सोर्सेज, तो वो सब आपके बोले जाते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। जैसे कि सोलर की बात कर लो, सोलर एनर्जी अगर सन की आपके पास हमेशा एनर्जी, सन लाइट हमेशा अवेलेबल है, तो आप सोलर एनर्जी आप हमेशा गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नॉन कन्वेंशनल में काउंट होता है। लेकिन जो फॉसल फ्यूल हैं, ठीक है, वो या फायरवुड हैं, वो आपके फॉसल फ्यूल्स आपके एग्जॉस्टेबल सोर्सेस माने जाते हैं, ठीक है। एक बार अगर फॉसल फ्यूल ख़त्म हुआ तो फिर वो आपके अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपकी फूड रिसोर्सेज की, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आती है आपके फूड रिसोर्सेज जो कि होते हैं आपके, वो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा कंपोनेंट जो कि आपकी एपिट और आपके साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ ग्रोथ में हेल्प करे, उसको फुलफिल करे, या आपके जो भी बॉडी प्रोसेस है, या आपकी जो भी एसेंशियल एनर्जी की सप्लाई को मेंटेन कर रखे,
आपके बॉडी टेम्परेचर की और आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ की मेंटेन करने में आपको सेटिस्फाई करे, वो आपका फूड रिसोर्स में काउंट होता है, ठीक है। फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ एनी डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट। देयर आर 6 मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। ओके, तो ये आपकी अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, आपकी एपेट सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, आपकी इन डाइट मेंटेन करने के लिए आपके यूज़ होते हैं जो कंपोनेंट, वो सारे के सारे आपके फूड रिसोर्सेज में आते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज आपके लैंड आपका एक नेचुरल रिसोर्स में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये आपकी जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी सनलाइट, एयर, वाटर की ज़रूरत होती है, उसी के साथ साथ आपकी लैंड की सपोर्ट लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें प्लांट, उस लैंड पर प्लांट एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके टेरिटोरियल प्लांट्स होते हैं, उनके जो रूट्स हैं सॉइल में, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके अपने प्रोसेस के, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फूड और जो अदर लिविंग सपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। प्लांट, जैसे कि प्लांट के थ्रू आपको, प्लांट होता है वो अपनी सॉइल के थ्रू वाटर, मिनरल वाटर और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके आपको फूड, जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं और आपको फ्रूट्स हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Man and all land animals in turn depends on these plants for food, and directly or indirectly. So land is also an important natural resource that is available to humankind. These resources will be discussed in detail. These resources, their exploitation, how they are being getting exploit, or how they and conversion of these resources, how these resources can be conserved. So these all things will be discussed in the next video.